جی ہماری یاد ہے کسی کو عالیہ ثانیہ کسی کو یاد رہ گیا کیا آپ کا پڑھ رہے تھے وہاں کی لاسٹ کلاس میں؟ کچھ بھی یاد ہو؟ جی یاد آیا بھائی کسی کو کچھ؟ نہیں آیا؟ نہیں بھی آیا تو بتا دیں، نہیں یاد آیا؟ یہی سر کہ ورلڈ وار 2 ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو مسلمان تھے وہ انگریز کی سپورٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے تو ہندوؤں سے انگریزوں کے تعلقات کچھ خراب ہو چکے تھے، تو اس کا مسلمان فائدہ اٹھا رہے تھے، اور قائد اعظم کو پوری جو وہ حکم دیتے وہ ہوتا تھا، مطلب ان کو پورے لیڈر وہ بن چکے تھے اس پارٹی کے، مسلم لیگ کے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد ہو؟ کسی کو اور کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ چلیں خیر کوئی بات نہیں، میں یاد دلاتا ہوں کچھ۔ تو ہم جو اصل میں لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تھوڑا سا کلاس کا ٹائم تھوڑا دیر ہو گئی تھی، شروع ہوتے ہوتے اس سے بھی بہت ساری چیزوں میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ لوگوں کو جلدی جلدی میں نے پڑھایا ہو۔ تو جو چیز اصل میں ہم ڈسکس کرتے ہوئے آئے تھے وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس طرح سے 1935 کا ایکٹ آیا تھا، تو اس کے بعد 37 میں الیکشن ہوئے، اس میں مسلمانوں کو کس طرح سے بری طرح سے مسلمان اور مسلم لیگ کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جو مسلمانوں کا ایک موقف تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہے اور مسلمان کا جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس ایک جو ہمارا موقف تھا اس کو جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ شدید جھٹکا لگا تھا، یا ایک طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر انہی حالات کو جناح صاحب نے اپنے حق میں کس طرح سے ٹرن کیا دوبارہ سے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے حق میں آئیں دوبارہ، اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ مسلم لیگ نے اپنے آپ کو دوبارہ سے گرو کیا اور دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے 1940 کی قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور اس کے اندر میں نے آپ لوگوں سے جب چلتے جاتے جاتے شاید ذکر کیا بھی تھا، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا یا اگر نہیں ہوگا تو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جو ریزولوشن پیش کی گئی تھی جو 1940 کی تھی، اس پر میں نے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا اسی ٹائم پہ کام بھی لیا تھا، اور آپ لوگوں نے شاید بتا بھی دیا تھا کسی نے مجھے کہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا، اور جو کہ اس کی قرارداد پھر جہاں پہ جب جناح صاحب پڑھ رہے تھے اور جو قرارداد پیش ہوئی تھی، قرارداد تو آپ سب کے لیے ہوگا کہ چودھری فضل حق نے پیش کی تھی جو کہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس دور میں وہ جو ہے وہ قرارداد پیش کی تھی پاکستان کی، اس کو قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، قرارداد پاکستان نہیں کہا جاتا تھا، قرارداد لاہور 1940 میں پیش کی گئی تھی۔ میں نے اس کے اندر آپ کو ایک چیز بہت زیادہ کلیئر کر کے واضح طور پہ بتائی تھی، اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم جس گریجویشن کی سطح پر ہیں اور جہاں ہم انٹر یا میٹرک یا 9 کی سطح پر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں بچوں کو اس طرح سے کلیئر نہیں بتائی جا سکتی، نہ بتائی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نہ سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ان کو بتائی جا سکتی ہے۔ ہم جب 1940 کی قرارداد پیش کر رہے تھے، قرارداد لاہور، تو اس کے اندر ہم نے کہیں پاکستان کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے جو سلائڈ بھی کری ہے میں نے آج، اس لیے ساری دیگر سلائڈ دھیرے دھیرے دکھا رہا ہوں، اس وجہ سے رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے سامنے چیز کلیئر ہے۔ ہم نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا مطالبہ کیا تھا، ہم نے آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ بھی انگریز کی سپرویژن میں، یعنی کہ قیادت انگریز کے پاس ہوگی، اور انڈر جو انگریز کے انڈر کے اندر ہم لوگ یہاں پہ یعنی کہ مسلمان، ہندو اور تمام جہاں جہاں جس کی ریاست میں زیادہ طاقت ہے، پاور ہے، وہ اپنے جو وسائل ہیں اس کے استعمال کر سکتا ہے، اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کوئی آزادی کا کسی پاکستان کا یا کوئی اس قسم کی آزاد ریاست کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ایک ریاست کا، یعنی کہ جو ملا کے خطوں کو ملا کے پاکستان بنایا جائے، اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے اس میں سمپل یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سرحد میں، بنگال میں، اور حیدرآباد کی جو ریاست تھی اس اور کشمیر، یہ وہ جو علاقے تھے جس میں مسلمان اکثریت میں تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان ریاستوں کے اندر مسلمانوں کو خود مختاری دے دی جائے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دی جائیں، اوپر بے شک جو ہے وہ انگریز کا اقتدار ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر 1940 کی ایک قرارداد تھی جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، اور یہ ایک ویسے جناح صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناح صاحب نے ایک بڑی کوشش کر کے جو مسلم لیگ کو 1937 میں جھٹکا لگا تھا اس سے نکالنے میں جناح صاحب جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھا، اس موقع پر میں نے آپ سے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ اس موقع پر جہاں کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور کانگریس جو تھی وہ انگریز کی شدید مخالف نظر آ رہی تھی،
वहाँ जो है वो अंग्रेज़ ने हमें स्पेस भी दिया था, यानी कि मुस्लिम लीग को और जिन्ना साहब को, जिसका नतीजा ये था कि हम बहुत सारे अपने मुतालबात मनवाने के पोजीशन में आ गए थे। इसके बाद की क्या सूरत हाल थी वो थोड़ी सी आज मैं उन सारी चीज़ों का जिक्र कर दूंगा। क्या कहते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा बीच में टाइम आ जाए तो मुझे आप लोग याद दिला दीजिएगा कि असाइनमेंट का बताना है, क्योंकि जब तक कोई और भी लोग अगर आ रहे होंगे तो उनके साथ ही शेयर कर लूँगा साथ ही। तो ये चीज़ यहाँ पर बस आपको क्लियर रखनी है कि हम इसको करारदाद लाहौर कहते थे, करारदाद पाकिस्तान इसको हमने बहुत बाद में कहना शुरू किया है। बल्कि अगर आप लोगों को किसी को मौका मिले तो नेट पे जाके सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान बनने के बहुत अरसे बाद तक जो है वो 1940 की इस करारदाद को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते थे। यानी कि हमने जमहूरियत की जो स्ट्रगल शुरू की थी, यानी डेमोक्रेसी की तरफ, जो उसके आपको टिकट वगैरह भी मिलेंगे, उसके जो मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते थे उसके अंदर भी आपको 1940, आप लोग नेट पर बैठे होंगे तो साथ के सर्च भी करते रहा करें अगर मौका लगे जो मैं कह रहा होता हूँ, ताकि आपको चीज़ पता चले कि उसको हम यौम जमहूरिया कहते थे। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हमने इसको करारदाद पाकिस्तान कहना क्यों शुरू किया और हमने इसको यौम जमहूरिया या यौम पाकिस्तान, सॉरी, लाहौर, करारदाद लाहौर या रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर कहना क्यों बंद कर दिया। इसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि जब 1958 में पहली दफ़ा यहाँ पर जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया, यानी कि एक फौजी जिनको आप अयूब खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने इक़्तिदार पर जब कब्जा किया यहाँ पर और जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया, यानी कि जो हुकूमतें आवाम की मर्ज़ी से बनती हैं उसका जब खात्मा किया, तो हर साल जो फिर यौम जमहूरिया मनाया जाना था, तो ज़ाहिर सी बात है उस साल भी यौम जमहूरिया आया जब 58 के अंदर। तो अब क्या किया जाए, ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सवाल था कि अब 23 मार्च 1940 को क्या, जो हम करारदाद उसकी याद में मनाते हुए आते थे और उसका जो हम दिन मनाते थे 23 मार्च को, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ अपनी जो खिफ़त को मिटाने के लिए और अपनी हकीकत को छुपाने के लिए इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिलवाया गया। और उसके बाद से जो है वो आज तक, ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ तारीख जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिखी जाती है, हुक्मरान अपनी मर्ज़ी की तारीख लिखते हैं, तो इसी वजह से फिर वो करारदाद पाकिस्तान में इसका नाम तब्दील हो गया और ये लाहौर रेजोल्यूशन या करारदाद लाहौर की जगह इसको करारदाद पाकिस्तान या यौम जमहूरिया के बजाय इसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाना शुरू हो गया। तो ये इसके पीछे कुछ की वजह थी, जिसका जो हमारी पाकिस्तानी तारीख के अंदर जो मैं आपसे बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें झूठ के ऊपर या हक़ाइक़ के मुनाफी होती, तो इस तरीके की एक चीज़ थी जो कि इस दौर के अंदर शुरू हुई। खैर, इसके बाद की सूरत हाल क्या होती है, वो ये होती है कि अब 1940 की करारदाद मुसलमानों ने पेश की। जिन्ना साहब ने जैसी करारदाद पेश की तो कांग्रेस की ऐसी बात है आग लग गई थी। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब ये जो मामला जो हैं वो मुसलमानों के हक़ में जा रहे हैं और हमारे हाथ से मामला जो हैं वो निकलते चले जा रहे हैं, हमारे हाथ से मामला निकल सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए कांग्रेस ने फौरी तौर पर एक फैसला किया और वो फैसला ये किया कि उसने भी एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया, यानी कि जो कांग्रेस में मुसलमान लीडर थे उनको जमा किया गया और उनसे कहा गया कि भाई आप लोग जो है वो एक इजलास जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को दावत दी जाए कि आप लोग जो है और इस इजलास के अंदर शिरकत करें। लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम रही और उसको कोई ख़ास जो है वो खातिर खा कोई इज्जत या पजीराई नहीं मिल सकी। जबकि मुसलमानों की जो रेजोल्यूशन थी, जो मुसलमानों ने और जिन्ना साहब ने जो करारदाद पेश की थी, वो जो है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं। अच्छा, जो मैं आपको उस दिन जिक्र करते करते रह गया था, वो बात ये थी कि जो मैंने आप लोगों से कहा था कि वो बैनर के ऊपर जो शेर है वो देखिएगा, और वो यकीनन आप लोगों ने देख भी लिया था, उस टाइम पे बता भी दिया था मुझे। तो उसके ऊपर जो शेर लिखा हुआ था कि वो जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, अल्लामा इकबाल का शेर था। और अब आप इस शेर को बआसानी समझ सकते हैं, जो क्योंकि 1937 आप मतलब इसके अल्फाज से भी अगर जज करना चाहें तो आप बआसानी समझ सकते हैं कि इस शेर को पीछे लिखवाने की वजह क्या थी। कि जो मुसलमान की मिसाल है, यानी कि मुसलमानों की जो आप जो पैगाम देना चाह रहे थे जिन्ना साहब, या आगे जो पैगाम पहुँचाना चाह रहे थे कि मुसलमान की मिसाल, मुसलमानों की मिसाल खुर्शीद की है। खुर्शीद आप सब जानते हैं कि हम सूरज को कहते हैं, तो खुर्शीद की है कि सूरज की मिसाल ऐसी है कि वो इधर डूबता है तो उधर निकलता है। मुसलमान की मिसाल भी ऐसी है कि अगर वो एक तरफ डूब रहा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई नाकाम हो गया, यानी कि वो कोई हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। एक जगह वो अगर गुरूब हो रहा होता है, दूसरी तरफ वो तुलू भी हो रहा होता है। तो जहाँ मुसलमान 1937 में गुरूब होते हुए महसूस हुए थे, तो जिन्ना साहब ने और जो मुसलमानों की तरफ से ये बैनर या जो पैगाम था वो बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर था कि हम जो है अगर गुरूब होते आपको नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नाकाम हैं, हम दूसरी तरफ से उभर भी रहे। और उसके उभरने का इजहार इसी तरीके से था कि 1940 की जो मुसलमानों ने करारदाद पेश की तो पूरे बड़े सगर के अंदर एक आग सी लग गई थी। अच्छा, ये वो मौका था कि इस मौके के ऊपर मैंने आपसे जिक्र किया था कि गांधी जी समेत कांग्रेस की पूरी क़यादत जो थी उसको जेलों में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वजारतों से इस्तीफा दे दिया था, अंग्रेज का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे दूसरी जंग अजीम में वो लोग।
तो इस मौके पर मुसलमानों के पास अच्छा मौका था, अच्छा कैश कराने का अपने आप को मौका था कि वो मुसलमानों को और मुसलमानों के जो मुतालबात थे उनको कैश करा सकें अंग्रेज से, और वो मुसलमानों ने और जिन्ना साहब ने काम किया भी। इसका रिजल्ट इस तरीके से निकल कर आया कि अब जो 19 में होगा कि जब भी कोई इस्तीफे देता, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी भी आप सुन रहे हैं कि कल शायद कल या परसों जो वो है मुस्लिम लीग और वो जो PDM पीपल्स पार्टी नून लीग वगैरह जो फैसले कर रहे हैं, हम जो है वजारतों से इस्तीफे दे देंगे, सॉरी वजारतों से बोल रहा हूँ, यानी कि असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। तो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे, बाई इलेक्शन जिसको आप कहते हैं ज़मीनी इंतखाबात जो कहलाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने इस्तीफे दिए तो जाहिर सी बात है हुकूमतें तो बरकरार रही थी, तो अंग्रेज ने उसके ऊपर बाई इलेक्शन शुरू करवा दिया। अब एक और तब्दीली आई इस पूरे सिनेरियो में, जब 1940 के बाद इलेक्शन शुरू हुए तो अब जो गलती तमाम सियासी जमातें कर चुकी थी, यानी कि उन्होंने जिन्ना साहब को या मुस्लिम लीग को उतना से सपोर्ट नहीं किया था इलेक्शन में, अब उन्होंने अपने नुमाइंदे नहीं खड़े किए। उसके मुकाबले में उन्होंने मुस्लिम लीग के ही नुमाइंदों को वोट करना और मुस्लिम लीग के ही नुमाइंदों को इलेक्शन में सपोर्ट करना शुरू किया। उसका रिजल्ट ये आया कि अब जितने भी ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुए, जितने भी बाई इलेक्शन शुरू हुए, उसके अंदर मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई। यानी कि जो भी बाई इलेक्शन होगा, जिस भी सीट के ऊपर उसके ऊपर मुसलमान जीते, यानी कि मुस्लिम लीग को कामयाबी मिल जाती, जो अब तक मुसलमान 37 में बाहर चुके थे, लेकिन अब कामयाबी मिलना शुरू हुई। ये चीज़ कांग्रेस के लिए ज़्यादा और तशवीश का बाइस थी, क्योंकि जाहिर बात है कांग्रेस को एक परेशानी नजर आ रही थी कि अगर इसी कंडीशन के अंदर मुसलमान और मजीद आगे बढ़ते रहे तो हमें उसका नुकसान हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ जो मैंने आपको उस दिन भी क्लियर की थी, मैं दोबारा उस चीज़ को दोहराऊंगा, वो ये कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इससे पहले जिन्ना साहब मुकम्मल तौर पे कोई वाहिद लीडर नहीं थे। मतलब लीडर जरूर थे मुस्लिम लीग के, लेकिन सिर्फ ये नहीं था कि जिन्ना साहब का ही कंसेंसस या जिन्ना साहब ही को जो है वो फोकस करके देखा जाता हो, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को देखा जाता था या लीडर के तौर पर समझा और परखा जाता था। लेकिन इस पूरी सिनेरियो के बाद, इस करारदाद के बाद, और फिर जब मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीतना शुरू किया, तो अब इस चीज़ का ख्याल जो है वो बहुत वाजे हो गया कि अगर अब इस टाइम पे कोई लीडर है मुस्लिम लीग का तो वो जिन्ना साहब है। और जो इससे पहले कांग्रेस ने एतराज़ उठाया था वो भी यही उठाती थी कि भाई जिन्ना से बात क्यों करें, जिन्ना साहब हैं क्या, मतलब ये कौन सी इनकी कोई हैसियत है, ये तो इलेक्शन तक तो जीत नहीं सकें, और हम तो सिंध की जमातों से बात करेंगे, बलूचिस्तान की, सरहद की, पंजाब की जमातों से बात करेंगे, जिन्ना साहब अपने आप को क्यों लीडर के तौर पर पेश करते हैं, हम जिन्ना साहब से बात नहीं करेंगे। लेकिन अब मुस्लिम लीग को भी इस चीज़ का एहसास होना शुरू हुआ कि अब हमें जिन्ना साहब को एज ए लीडर के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लीडर के तौर पर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इस पूरी सूरत हाल को भी सामने रखना था, और दूसरी तरफ जंग अजीम चल रही थी, अंग्रेज को वहाँ बुरी तरीके से मार पड़ रही थी। ऐसे हालात में जैसी बात मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब आपको माशी तौर पर भी परेशानी होती है, मिलिट्री के तौर पर भी आपको फौजों की ज़रूरत होती है, तो फिर आप बार्गेनिंग पोजीशन में आते हैं। ये वो अच्छा मौका था जिस चीज़ को जिन्ना साहब ने भी कैश कराने की कोशिश की और मुस्लिम कांग्रेस ने भी कैश कराने की कोशिश की। वो इस तरह से की कि एक वजीर आला थे जो कि कांग्रेस के वजीर थे, लेकिन उनका मुस्लिम लीग के साथ और जिन्ना साहब के साथ एक अच्छा रास्ता था। और जब उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस की पूरी क़यादत जेलों के अंदर है और मुसलमानों को भी स्पेस मिलता जा रहा है और जिन्ना साहब एक लीडर के तौर पर उभर के सामने आ गए हैं, मुसलमानों को इलेक्शन में भी फतह मिल रही है, तो उन्होंने गांधी साहब को उस चीज़ के लिए तैयार किया कि हमें मुसलमानों से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर हमने मुसलमानों से और कांग्रेस मुस्लिम लीग से बात नहीं की तो इसका हमें नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान इस सूरत में होगा कि अगर अंग्रेज यहाँ से कल गया, यानी कि जो हालात हो रहे थे जंग के जो नज़र आ रहे थे वो बधाए यही थे कि अब बरतानिया जंग के अंदर बुरी तरह से शिकस्त खा जाएगा। तो उसके नतीजे में उनका ख्याल ये था कि अगर जैसे अंग्रेज यहाँ से भागा या निकल के गया तो हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को मार रहे होंगे, तो बेहतर यही है कि मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को और जिन्ना साहब को एक हकीकत समझा जाए। ऐसा नहीं है कि उनको आप बिल्कुल हकीकत से माइनस कर दें, उनको आप कुछ तो समझें ना, उनसे बातचीत तो करें। इस सिलसिले में उन दिनों वो जेल में थे, गांधी साहब और जिन्ना साहब बाहर थे, तो फिर एक खतों किताबत का सिलसिला और आपस में बातचीत का सिलसिला जो था वो इन वज़ीर आला ने शुरू कराया। इन साहब का जो नाम था वो राजगोपाल आचार्य इनका नाम था। अचार से जैसे आचार्य होता है वो वाला अचार थे, ये पता नहीं कौन सा था, लेकिन ये कि राजगोपाल आचार्य इनका नाम था। इन्होंने जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू कराया और जिन्ना साहब का जाके बताया कि भाई वो लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, उनसे बात की जाए। इस मौके पर फिर गांधी जी साहब को भी इस चीज़ का ख्याल आया, या उन्होंने इस चीज़ को समझना शुरू किया कि हमें जो है वो मुसलमानों के साथ बातचीत और जिन्ना साहब के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसी पूरे अरसे के दौरान एक अहम काम ये हुआ कि गांधी जी ने जिन्ना साहब को जहाँ लीडर एक्सेप्ट किया, वहाँ वैसे मतलब मुसलमान इलेक्शन जीत भी रहे थे, वो मैंने आपसे जिक्र किया कि मुसलमानों का इलेक्शन जीतने का जो सिलसिला था वो भी नज़र आना शुरू हो गया था। इसी पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मुसलमानों ने ये फैसला किया और गांधी जी ने फैसला किया कि भाई हमें भी जो है वो गांधी जी को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, यानी कि जो गांधी जी को हम बिल्कुल स्पेस ही दे रहे हैं। तो मुसलमानों की जो जिन्ना साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत में बातचीत करते हुए ये कहा कि भाई जिन्ना गांधी जी को जो है वो
जेल से रिहा किया गया ताकि जो बातचीत का मरहला है वो आगे बढ़ सके। तो इस मौके पर फिर इत्तेफाक की बात ये थी कि इनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी बहुत ज़्यादा। ये जो हमारे गांधी जी थे इनकी तबीयत ख़राब थी, जेल के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो इस मौके पर अंग्रेज़ ने भी इस चीज़ का फैसला किया कि भाई चलो उनको जेल से रिहा करो, और इसी दौरान को जो है वो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब जब गांधी जी जेल से रिहा होकर आए तो जाहिर सी बात है फौरी तौर पर उन्होंने भी कोई ना कोई अपनी मूवमेंट शुरू करनी थी। मुसलमानों के साथ भी उनके रास्ते थे और मुसलमानों के साथ भी उनका कनेक्शन चल रहा था। राजगोपाल आचार्य साहब की भी कोशिशें जारी थी कि किसी तरह दोनों पार्टियां आपस में कोई इत्तेहाद या कोई आपस के कोई मामला को तय कर लें बरसगीर के अंदर, क्योंकि हालात जो है वो बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। क्योंकि उस पूरी अरसे के दौरान 41-42 तक जो है वो लग ही रहा था कि बरतानिया जंग में शिकस्त खा जाएगा। और आप सबके इल्म में होगा कि उसी दौरान जो है वो जापान ने जो है वो अमेरिका की एक हार्बर के ऊपर, पर्ल हार्बर एक फिल्म भी बनी थी, आप लोगों ने देखी हो शायद। जो पहला जो कहते हैं ना दुनिया में खुद का हमला था वो जापानियों ने किया था। तो वो इसी तरीके से किया था कि उनकी किश्तियों के ऊपर उन्होंने अपनी किश्तियाँ बम बांध कर टकराई थी। तो उसके नतीजे में जो है वो अमेरिका भी उस जंग के अंदर शामिल हो गया था, छलांग और आगे लगा के उसने जो है वो फिर उनके ऊपर एटम बम मार दिया था। खैर फिर बिलाकर फैसला ये हुआ कि भाई जो है वो गांधी जी को और जिन्ना साहब को जो है इस चीज़ के साथ ये तय किया गया कि भाई अब जो है वो हमें यहाँ से गांधी जी को बाहर निकलना है। गांधी जी ने बाहर आए और आती जो है वो फिर गांधी जी के साथ जिन्ना साहब के मुज़ाकरात शुरू हुए। इसी मौके के ऊपर जब बरतानिया फंसा हुआ था तो बरतानिया ने एक काम ये किया कि उन्होंने बरतानिया ने एक मिशन को यहाँ भेजने का फैसला किया ताकि जिस तरीके से ये लोग आपस में बातचीत करें इसको भी रिजॉल्व कराया जा सके। और दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो मुसलमानों का और जो कांग्रेस का आपस में मामला है उसको भी रिजॉल्व कर सकें। इस सिलसिले में उन्होंने काम नहीं किया, एक काम नहीं किया कि एक मिशन को भेजा जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है। आपने सुना होगा 1942 के अंदर एक मिशन को रवाना किया गया जो कि आज यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिला, तमाम सियासी जमातों से उसने मुलाकातें की, मुसलमानों से भी कांग्रेस से भी। और उसने जो है मुसलमानों को और कांग्रेस दोनों को लारे लपटे दिए। लारे लपटे इस तरह से दिए कि आसरा कराया, लॉलीपॉप देना जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो जंग में फंसे हुए थे। उनको पता था कि अगर हमने इस मौके पर इन दोनों सियासी जमातों को आपस में इत्तेहाद नहीं करवा सके तो हमारे लिए जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा और हमें जो वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, वो फिर हम हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो था वो स्क्रिप्ट मिशन को ना तो जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट किया, ना जो है वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। और वो मिशन ने अपनी कुछ सिफारिशात भी पेश की, लेकिन जो है वो दोनों पार्टियों ने वो सिफारिशात जो है वो इस मिशन के मुंह पर मारी और उन्होंने कहा भाई हमें आपकी जो है वो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो बिल आकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उस क्रिप्स मिशन को रवाना कर दिया। लेकिन जैसे ही रवाना किया उसके फ़ौरन बाद ये 1942 की बात थी। 1942 में ये सारा वाक़या हुआ कि जो गांधी जी का जो सारा सिलसिला था इस मामले में जो है वो गांधी जी की जो कोशिशें थी वो अलग दूसरी तरफ चली गई और जिन्ना साहब के साथ जो मामला हो रहे थे वो भी खत्म हो गए और क्रिप्स मिशन बुरी तरह से नाकाम हुआ। जैसे ही ये नाकाम हुआ है उसके फ़ौरन बाद गांधी जी ने एक बहुत अहम नारा लगा दिया जो अब तक इससे पहले बरसगीर में नहीं लगा था, और वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि इंडिया छोड़ दो तहरीक। इस नारे का जो आगाज़ था वो बुनियादी तौर पर गांधी जी ने किया और उन्होंने कहा कि भाई अब आपको यहाँ से बरसगीर से निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने क्विट इंडिया का नारा लगाया, यानी कि जब उन्होंने क्विट इंडिया की जैसी बात की तो उसके फ़ौरन बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि जब ये नाकाम हो गया तो जाहिर सी बात है कि मिशन ने जो अपनी कोशिशें की थी वो नाकाम हो चुका था। उसके फ़ौरन बाद जब उन्होंने इंडिया छोड़ दो तहरीक चलाई तो गांधी जी के मुकाबले में जिन्ना साहब का कहना ये था कि सिर्फ इंडिया छोड़ दो तहरीक से काम नहीं चलेगा। उन्होंने उसके अंदर एक और जुमले का इजाफा किया जिसको कहते हैं डिवाइड देन क्विट इंडिया, यानी कि पहले आप तकसीम करो और उसके बाद यहाँ से जाओगे। ऐसे नहीं जाओगे कि आप जो है वो हमें मुस्लिम कांग्रेस के रहमो करम पे छोड़ के चले गए, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की जमात है और वो हमारा सत्यानाश कर देगी। तो जिन्ना साहब की ख्वाहिश उस टाइम पे ये थी कि हम किसी भी तरीके से इस खत्ते को अब डिवाइड की तरफ भी लेके जाएं। ये वो मौका था जिसे हम पहली दफ़ा कह सकते हैं कि अब हमारे भी दिमागों में चीज़ वाज़ेह हुई या क्लियर हुई कि अब हमें तकसीम की तरफ जाना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ या बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर है। अभी हमने पहली दफ़ा आइडिया फ्लोट किया सिर्फ, अभी हमने कोई तकसीम की मुहिम नहीं शुरू की, ना हमने कोई तकसीम की कोशिश शुरू की, ना हमने कोई आज़ादी की बात की। हमने ये पहली दफ़ा, क्योंकि कांग्रेस ने ये नारा लगा दिया था डिवाइड का, तो इसलिए सॉरी जाने का क्विट इंडिया का नारा लगा दिया था कि इंडिया छोड़ दो, तो इसमें हमने डिवाइड का इजाफा करके कहा कि अब जो है वो हमें यहाँ से हिंदुओं को भी निकाल, हमें हिंदुओं से भी आज़ादी चाहिए और उसके बाद जो है वो फिर कांग्रेस से भी आज़ादी चाहिए। इस पूरे से दौरान मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि इलेक्शन में जो कामयाबियां मुसलमानों को मिल रही थी वो दूसरी तरफ थी। इसी पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फायदा हुआ, ये फैसला हुआ कि अब जो है वो जो मुसलमान और कांग्रेस दोनों मिलकर बातचीत करें और उसका कोई हल निकालें, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी एक दफा नाकाम हो चुका था। उन्होंने अपने तौर पर जो कोशिश की वो नाकाम हो चुकी थी। इस मौके पर अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत जो है ना दुनिया के अंदर अपना इजहार शुरू किया और उन्होंने भी कोशिश ये की, क्योंकि इससे पहले आप जानते होंगे कि बरतानिया की दुनिया में हुकूमत थी
तो अमेरिका को इस किस्म का कोई ख़ास किरदार जो है वो अदा नहीं करता था। और उसका जो किरदार अदा ना करने की वजह ये थी कि ज़ाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी सुपर पावर थी वो बरतानिया था। लेकिन अब बरतानिया की शिकस्त जहाँ नज़र आ रही थी उसके नतीजे में अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत अपनी कोशिश शुरू करी और यहाँ पर आकर इस चीज़ की कोशिश की कि मुसलमान और कांग्रेस जो है वो इसी तरह से बरतानिया का साथ दें जापान और जर्मनी और दीगर ममालिक के मुकाबले में। अच्छा, लेकिन 43 के जब ईयर में दाखिल होते हैं, यानी कि 1943 के सन में दाखिल होते हैं, तो सूरत हाल एकदम से थोड़ी सी पलटी खा जाती है और पलट जाती है। और होता यह है कि अब तक जो बरतानिया को शिकस्त हो रही थी और वो जो आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए तैयार था, कुछ मिन्नत रद्द कर रहा था कि भाई थोड़ा सा इंसान बन जाओ तुम लोग, लेकिन अचानक से 43 और 44 के अंदर ये कंडीशन हुई कि जंग का पासा पलट गया और जंग जो थी वो बरतानिया के हक में चली गई। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए ऐसी बात है, अभी तक तो वो फंसा हुआ था जंग में, उसकी मजबूरी थी। अब उसने इस चीज़ का फैसला किया कि अब जो है वो जंग के अंदर जंग के अंदर जो है वो बरतानिया का की शमूलियत जो है वो बढ़ गई ज़्यादा। और बरतानिया ने जैसे ही जंग को जीतना शुरू किया तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि मुसलमानों और कांग्रेस दोनों को चीज़ का अंदाजा हो। अब बरतानिया ने एक दफ़ा फिर आंखें फेर दी, जो अब तक वो हमसे बातचीत कर रहा था। और क्रिप्स मिशन में भी उसने हमें जो बहुत सारी चीज़ों का आसरा कराया था कि नहीं इस किस्म के मामला होंगे। मैं आपको अभी थोड़ी सी चंद चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्रिप्स मिशन आपको लारे लपे क्या दे रहा था, तो मतलब आपको जो लॉलीपॉप दी थी क्या दी। क्रिप्स मिशन ने मुसलमानों से कहा था कि भाई देखिए, जंग के खात्मे के बाद बर सग़ीर को हम आज़ादी दे देंगे, यानी कि आज़ादी दे दी जाएगी आप लोगों को, और इसका जो काफ़ी हद तक का हिस्सा होगा दाखिली तौर पर मुकम्मल तौर पर आप लोग आज़ाद होंगे। हाँ, खारजी तौर पर हम जो है वो मलिका बरतानिया के आपको अंदर में रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आज़ादी मिल जाएगी। ये उन्होंने आपको आसरा दिया था। उसके अलावा उन्होंने आपको एक आसरा ये भी दिया था कि तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवा देंगे, दोबारा से इंतखाबात करवा देंगे, ताकि जो उसमें कामयाब होगा उसकी हुकूमतें बन जाएंगी। ये भी उन्होंने आपको एक बहुत बड़ी लॉलीपॉप दी थी, जिसके नतीजे में उनको लगता था कि उससे मुसलमान और जो कांग्रेस है वो किसी न किसी तरह बात में हमारी चीज़ों को शामिल हो जाएगी। इसके अलावा और दो तीन छोटे छोटे पॉइंट है, वो बिल्कुल ही टेक्निकल नॉलेज के, लेकिन इसे बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि वफाक के अंदर बहुत सारी रियासतों को शामिल होना था, उनको शामिल करना है या नहीं करना है, इस नौयत के बहुत सारे मामला थे। और इस किस्म का जो उन्होंने थोड़ा सा आसरा जो है वो कांग्रेस दोनों मुसलमान के हम जो है वो आज़ादी देंगे। अब उन्होंने जैसे ही ये मामला खत्म हुआ, जैसे ही लड़ाई का मामला उनको लगा कि अब हमारे हाथ में आ गया है, तो उन्होंने जो है ना एक दफ़ा फिर पलटी मार दी और उन्होंने कहा कि वो तो जंग के दौरान के हालात थे और अब जो है वो हमें दोबारा से रिविजिट करना है अपनी पॉलिसी को कि हमें बड़े शरीर के अंदर क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। इस मौके के ऊपर जो है वो उन्होंने काम ये भी किया कि इनके जो लॉर्ड थे उस दौर में वो तब्दील हुए 1943 में, जैसी हालात थोड़े से तब्दील हुए, जंग के हालात इनके कंट्रोल में आए, तो इन्होंने ये कहा कि भाई अब हम तो फैसला नहीं कर पा रहे और ना आप लोग कोई हल निकाल पा रहे, तो एक काम ये करते हैं कि 1944 1944 में उन्होंने काम किया, जिसको आप इनके नए जो लॉर्ड आए थे यहाँ पे बड़े सदन में, उनको वॉविल कहा जाता था, लॉर्ड वॉविल थे वो। और उन्होंने आके ये कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हैसियत को बरकरार रखा जाए, यानी कि इसको मैं तब्दील तोड़ना नहीं चाहता हूँ ना। इससे पहले उन्होंने मैंने बताया था पिछले साल ही वो आपसे ये क्या क्या कहते 2 साल पहले क्रिप्स मिशन में कि हम चाहते हैं कि हम आपको आज़ादी दे दें और हम आपको जो है वो खुद मुख्तारी दे दें। लेकिन अब जो लॉर्ड वॉवेल साहब आए 1943 में आके उन्होंने यहाँ पे इक़्तिदार को संभाला, जो नए वायसराय बनकर आए यहाँ पे, उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं, हम तो वो तो जंग के हालात थे, इस वजह से हमने इस किस्म की आपको पेशकश की थी, हम फिलहाल कोई आज़ादी की बात तो नहीं करेंगे। और मेरी ख्वाहिश होगी, मैं आपको उनके अल्फाज में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ को क्लियर है। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान एक आज़ाद, खुशहाल और मुत्तहिद मुल्क की हैसियत में बरकरार रहे, यानी कि आज़ादी होगी, खादी तौर पर हमारे होगी, लेकिन आज़ाद, खुशहाल और मुत्तहिद रहेगा, यानी कि हम इसकी तकसीम नहीं चाहते हैं। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने काम ये भी किया, फिर उन्होंने 1945 के लिए तो उन्होंने काम ये किया कि प्रपोजल तैयार किया। इस पूरी अरसे के दौरान मैंने आपसे फिर एक दफ़ा दोबारा जिक्र कर देता हूँ, ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके अंदर मुस्लिम लीग एक मुकम्मल तौर पर सियासी जमात के सूरत में उभर के सामने आ चुकी है। गांधी जी भी रिलीज हो चुके हैं जेल से और आपस में भी मामला चल रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। वोवेल साहब ने एक प्लान दिया जिसको वोवेल प्लान कहा जाता है, जो कि 1945 के लिए था। इसके लिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक दफ़ा फिर मदऊ किया और उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है वो वहाँ पर आए बरतानिया, और वहाँ पर बैठ के बातचीत होगी, कोई इसका सियासी हल निकाला जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक पूरा प्लान बना के दिया, जिसको जो है वो ना यहाँ तो मुस्लिम लीग ने कबूल किया, ना जो है वो कांग्रेस ने कबूल किया। और ये जो वोवेल प्लान था ये भी बिलाखिर जो है मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार रहा और इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे, यानी कि मुस्लिम लीग। उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ थी, वो ये थी कि जो तमाम वजीर आला थे सूबों में, यानी कि जो सूबे का वजीर आला था, जैसा आप समझ सकते हैं ना, सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह, पंजाब के गुलजार साहब हैं,
تو اس قسم کے جو بھی تمام وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک دفاعی کمیٹی بنائی. اچھا یہ بھی ایک انگریز کی چلاکی تھی. دفاعی کمیٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ دفاع یعنی کہ ڈیفینس کا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو اندازہ ہوا کہ دیکھیں نا ہم جب پھنسے برطانیہ کو چیز کا اندازہ ہوا تو نہ کانگریس نے اس طرح سے ہمارا ساتھ دیا, مسلم لیگ نے کسی حد تک ساتھ دیا لیکن کانگریس نے ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا. تو انہوں نے ایک دفاعی کمیٹی بنائی اور اس دفاعی کمیٹی کا کام ہے تو دفاع کرنا ہوتا ہے, ملک کا ریاست کا دفاع کرنا ہوتا ہے. تمام وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دیا گیا یا بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے, اس کمیٹی کے آپ لوگ ممبر ہوں گے. تو اس کمیٹی کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دفاع کا جو اختیارات ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہوں گے. اور اس میں جو سیاسی جماعت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں چھوڑا ہوگا. یعنی کہ مثال کے طور پہ مسلم لیگ کا ایک وزیر اعلیٰ اس کو ذاتی حیثیت میں خود مختار کر رہے تھے کہ وہ فیصلہ لے سکے دفاع کے حوالے سے. کیوں؟ تاکہ آئندہ اگر کبھی کوئی جنگ کی صورتحال پیش آئے تو اس کو سیاسی جماعت سے بات نہ کرنی پڑے, صرف اسی وزیر اعلیٰ سے بات کرنی ہو, تاکہ ان کو اگر فوجوں کی ضرورت ہو یا وسائل کی ضرورت ہو تو وہ اس کو آسانی سے حل کر سکیں. جناح صاحب نے صاف اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی ممبر اس دفاعی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گا. اور اسی طرح کانگریس نے بھی اس ساری چیز کا انکار کر دیا. اس طرح یہ ووبل پلان جو تھا جو کہ 1945 کے اندر دیا گیا وہ بھی بری طریقے سے ناکام ہو گیا, ناکامی کا شکار ہوا. اور جو انگریز, کیونکہ ظاہر بات ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 45 تک جو ہے وہ جاتے جاتے 1939 میں جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کا خاتمہ شروع ہو گیا تھا, یا اس جنگ کا جو اختتام تھا وہ ہونے والا تھا. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ ابھی لائن جو ہے وہ 8 منٹ بعد کٹ جائے گی, تو اسی آئی ڈی سے فوراً آپ لوگ لاگ ان ہو جائیے گا, فوراً یعنی کہ اسی آئی ڈی کو دوبارہ یوز کرنا ہے آپ نے, دوبارہ لاگ ان ہو جائیے گا تاکہ پھر میں آپ کو اسائنمنٹ کی جو بھی تھوڑی بہت بات چیت ہے وہ پھر میں اس کے اندر بتا سکوں گا. تو خیر بالآخر اس پورے سلسلے کا خاتمہ ہوا. لارڈ ووبل کا جو پلان تھا وہ بھی بری طریقے سے ناکام ہو گیا. کرپس مشن تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ ناکام ہوتے یہاں سے جا چکا تھا, لیکن 45 تک حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے. انگریز جنگ میں کامیاب ہو چکا تھا. اب اس کا جو تھا معاملہ جو تھا وہ دوبارہ سے اسی طریقے کا سخت ہو چکا تھا جو کہ پہلے کی طریقے سے تھا. اسی دوران اتفاق سے کام اور یہ بھی ہوا کہ 1945 کے سن میں داخل ہوتے ہوتے برطانیہ میں ایک دفعہ پھر الیکشن ہوئے, جیسے ہر ان کے 4-5 سال بعد جو الیکشن ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اور وہاں پر وزیر اعظم بھی تبدیل ہو گئے. ان کا ایک نئے وزیر اعظم ہے جن کا نام ایٹلی تھا. ان وزیر اعظم نے آتے ہی اعلان کیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ بر صغیر کے حوالے سے ایک کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں, نئی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے. برطانیہ جنگ سے کامیابی سے نکل تو گیا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ سب جانتے ہیں, آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مالی طور پہ بہت شدید جھٹکا جو ہے وہ لگتا ہے جنگ کے دوران. اگر آپ کو چھوٹی موٹی کی جنگ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کے رزلٹ میں آپ کو بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. برطانیہ معاشی طور پہ بہت کمزور تھا. اب اس کے پاس اتنا دم خم نہیں بچا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان پورے حالات کو سنبھال سکے, معاملات کو روک سکے, بہتر کر سکے. اسی پوری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے کی خواہش میں کوئی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کا آئینی حل نکلا ہے, کوئی سیاسی حل نکلے تاکہ ہماری جان چھوٹے. اصل میں آپ نے دیکھا نا یہ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ وہ جب آپ کمبل اوڑھ لیتے ہیں نا تو پھر کمبل سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے نا. سردی میں بھی آپ نے دیکھا اس کمبل سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, جب تک کمبل میں نہیں سردی نہیں لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ کمبل سے باہر نکل جاتے ہیں. ایک سیکنڈ کسی نے میسج بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے بھائی, ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں کل کس نے میسج ہے. اچھا سیکنڈ, ہاں میں سیکنڈ سیشن لوں گا. جی جی بالکل, اس کے فوراً بعد میں نے آپ لوگوں کو کہا اس کے فوراً بعد آپ لوگ اس کو جوائن کر دیے گا تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا ٹائم ہے. باقی اس کے اندر پھر میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کی تفصیلات جو ہے وہ دوسرے سیشن کے اندر اور اٹینڈنس کا بھی جو ہے معاملہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں اسی لنک کو دوبارہ آپ لوگوں نے اسی لنک سے دوبارہ لنک وہ جو آپ کو جو وہ آتی ہے نا, جو آئی ڈی آتی ہے, آپ آئی ڈی دوبارہ ڈالیں گے جوائن کرنے کے تو وہ دوبارہ آئی ڈی دوبارہ جوائن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, آئی ڈی یہی پاسورڈ سیم رہے گا, کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. تو وہ دوبارہ اسی آئی ڈی پر آپ لوگ فوراً ہی 2 منٹ بعد بھی آپ آتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. خیر تو اس پوری صورتحال کو جو ہے وہ انگریز بڑی چلاکی کے ساتھ ہینڈل کر رہا تھا. اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اب مسلمانوں کو جو وقت تک آزادی کی کوئی بات کر رہے تھے, لیکن یہ اب ان کو پریشانی تو تھی, لاحق تو ہو چکی تھی کہ اب یہاں سے کسی طرح سے نکل کر بھاگنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اب جنگ سے تو ہم نکل گئے ہیں, جنگ کے جو معاملات ہیں ان کے اس سے ان کی جان چھوٹ چکی تھی. اب انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی آئینی حل بھی نکال دیا جائے تاکہ ہماری اس مسئلے سے جان چھوٹے. اچھا آپ سب کے علم میں ہوگا کہ 1945 میں اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا, وہ سب آپ کے علم میں شاید ہے, اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس جنگ کا ایک بہت اہم فریق جو تھا وہ جاپان تھا. اور جاپان سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا تھا, امریکہ کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں امریکہ بھی جنگ میں چھلانگ لگا چکا تھا. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے کے لیے کام یہ کیا کہ اس نے جنگ کے دوران ہی, جبکہ جنگ کا تقریباً اختتام ہو چکا تھا, جرمنی شکست ہو چکی تھی, ہٹلر بھاگا ہوا تھا, ہٹلر مل نہیں رہا تھا,
और क्या कहते हैं हिटलर के बारे में मुख्तलिफ इतला डाली थी कि उसने खुदकुशी कर ली है, उसके हज़ारों लाखों लोग मारे जा चुके थे। मतलब इस पूरी दोनों जंग अजीमों के दौरान बताया जाता है। पहली जंग अजीम जो 1914 से 1918 तक रही थी और फिर 1939 से 1945 तक ये दूसरी जंग। इन दोनों जंगों के बारे में बताया जाता है। तकरीबन तकरीबन इन सारे ममालिक ने मिलकर, यूरोपीय ममालिक ने जो आज अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, अपने आप को तहजीब याफ्ता, अपने आप को बड़ा समझदार पढ़ा लिखा शो करते हैं, को 2 करोड़ के करीब इंसानों को बुरी तरीके से जानवरों की तरह मार दिया गया था। बल्कि मैंने आपको मुझसे जिक्र किया था, अगर नहीं किया तो अभी चंद दिन पहले इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं जो कि दूसरी जंग अजीम के ऊपर बनी हुई है, जिसके अंदर हिटलर के फौजियों को सजाएं वगैरह देते हुए दिखाया गया है। तो वो अगर आप लोगों को देखने का, तो इंसानों के साथ जितना बुरा रवैया इस जंगों के दौरान रखा गया था वो इंसानी तारीख में शायद कभी नहीं रखा गया। इन्होंने भेड़ियों की तरह इंसानों को जिस तरह से रोका था। खैर जिस जंग का तकरीबन खात्मा था और हालात तकरीबन कंडीशन नॉर्मल होती जा रही थी, लेकिन अमेरिका को अपनी बदमाशी और अमेरिका को अब आप एज अ सुपर पावर के तौर पर दुनिया के अंदर अपना इजहार करना था। उस इजहार के लिए उसने ये किया कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को सुबह, बिल्कुल जो सुबह का टाइम होता है 8-9 बजे का, जब लोग अपने ऑफिस और काम के लिए रवाना हो रहे थे, उस मौके के ऊपर बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी चीज़ के जाने बूझे, जबकि जंग का खात्मे का ऐलान हो चुका था, 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया। और उस एक एटम बम से जो तबाही और ताबकारी थी उसका आप अंदाज़ा आज तक लगा सकते हैं कि आज तक जो बताया जाता है कि आज तक जापान के अंदर उस ताबकारी के असरात हैं और कई सालों तक उनके यहाँ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते रहे। और उसके बाद ये 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और फिर 9 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा के बाद फिर नागासाकी के ऊपर भी अमेरिका ने एटम बम मार के कहीं 1.5 लाख बताया जाता है और कहीं 2 लाख लोग जो है वो इन दोनों बमों की सूरत के अंदर हलाक हुए। ये पहला मौका था कि जब दुनिया ने अमेरिका की बदमाशी का आगाज़ हुआ, यानी अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर के तौर पर मनवाने के लिए जिस बदमाशी से आगाज़ किया वो ये जापान के ऊपर एटम बम गिराना था, जिसके नतीजे में बिल आखिर जापान ने, जितना जो जर्मनी को तो शिकस्त हुई चुकी थी जंग के अंदर, फिर बिल आखिर 1945 14 अगस्त 1945 को, यानी कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद होता है, हम तो खैर 2 साल बाद 47 में आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त 1945 को बिल आखिर जापान ने सरेंडर किया और उसने हथियार डाल दिए। और उसके बाद आज तक आपको सबके इल्म में होगा कि अमेरिका जो है वो उसके फौजी अड्डों पर काबिज है। आज भी जो है वो अमेरिका की वहाँ पर बदमाशी चलती है जापान के अंदर। तो इस तरह से जो है वो इस जंग का खात्मा हुआ और बरतानिया को उसके अंदर जो वो कामयाबी हासिल हो गई थी, और बरतानिया ने कामयाबी के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो उसके नुकसानात हो चुके तो उससे निकलने का उसके पास यही हल था कि इन लोगों से किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। ये जो कंबल बरसगीर का उन्होंने ओढ़ लिया, इससे निकल के भागने का कोई तरीका इख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ मज़ीद कोशिशें शुरू की और उन कोशिशों में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि अब हम इस बरसगीर की आज़ादी के हवाले से या बरसगीर के नए प्लान के हवाले से हमें यहाँ पर इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1937 के एक इलेक्शन हुए थे, अब उन्होंने 45 में इस चीज़ का ऐलान किया कि अब हम जो है एक नए इलेक्शन करवाएंगे और उन इलेक्शंस की बुनियाद पर जो हुकूमतें फॉर्म होंगी फिर उससे कोई बातचीत का सिलसिला आगे की जानिब शुरू हो सकेगा। ये उन्होंने एक तरीके से यहाँ के मकामी अफराद को एक समझ में आसरा दिया, एक लोगों को हौसला दिया कि भाई ये तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम यहाँ से या तो जाएंगे या जो है वो इसके हवाले से जो भी फिर मुस्तकबिल का फैसला है वो सिर्फ इन इलेक्शंस की बुनियाद के ऊपर होगा। तो इन इलेक्शन के इनेकाद का फैसला जो है वो एटली साहब जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया जब इलेक्शन कराना है यहाँ पर जो है वो तय हुआ। अच्छा, इस इलेक्शन के अंदर एक फ़र्क था, थोड़ा सा फ़र्क था, वो चीज़ छोटी सी चीज़ है, वो मैं आप समझ लीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 1937 का इलेक्शन जो था वो बुनियादी तौर पर सूबाई इलेक्शन था, यानी कि सिर्फ सूबों की सतह पर वो इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर वफाकी सतह पर इलेक्शन नहीं हुआ था। जैसे कि आप समझ सकते हैं ना, एक हुकूमत बनती है सूबे की, एक बनती है फेडरल की। फेडरल की हुकूमत किसको चुनती है? वज़ीर आज़म को, जो कि कौमी असम्बली कहलाती है। और सूबाई हुकूमत किसको चुनती है? वज़ीर आला को, जैसे जो कि सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में, पंजाब में हुकूमतें बनती हैं। इससे पहले अब तक बर्रे सगीर में वफाकी सतह पर कोई इलेक्शन नहीं होता। फेडरेशन की सतह जिसको हम कहते हैं, यानी कि कौमी असम्बली टाइप की जो चीज़ होती है, उस सतह तक मुसलमानों को, कांग्रेस को अंग्रेज लेके नहीं जाता। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि अब जो इलेक्शन होंगे, यानी कि 45 में उन्होंने ऐलान किया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो सूबाई और वफाकी दोनों सतह पर होंगे। पहली दफ़ा आपको दोनों सतह पर इलेक्शन का मौका मिल रहा था। तो ये वो पहला मौका था कि जिसके इलेक्शन होने थे। और ये फिर इलेक्शन जो है वो उन्होंने फौरी 45 में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया जंग के खात्मे के फ़ौरन बाद, और जनवरी में उन्होंने 1946 में, यानी कि दूसरा साल शुरू होते ही 46 में इस इलेक्शन के इनेकाद का फैसला किया गया।
और ये इलेक्शन जो होना करार था। इस इलेक्शन में क्या हुआ, अब ये मेरे ख्याल में 1 आध मिनट रह गए, लाइन कट जाएगी, तो आप लोग जैसे ही दोबारा ज्वाइन करेंगे तो मैं उस इलेक्शन की तफसीलात आपको थोड़ी सी बताऊंगा, और उसके बाद जो है तो मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट की भी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि असाइनमेंट के अंदर क्या चीज़ें हुई थी और क्या चीज़ें होना जो थी वो असाइनमेंट के साथ भी शामिल हैं। तो यहाँ तक कुछ चीज़ आपको यकीनन मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई है तो जो अब हम नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोग सवाल भी कर सकते हैं, इस हवाले से जो भी मुख्तलिफ चीज़ आपको समझना है वो पूछ सकते हैं। ये 40 से लेके 46 तक का जो टाइम पीरियड था वो मैंने उसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखी है कि क्या सियासी सूरत हाल चल रही थी।